ٹرمپ کا آبنائے ہرمز میں پروجیکٹ فریڈم دوبارہ شروع کرنے پر غور۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے آفس میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا، ابھی فیصلہ نہیں کیا، ایران یقینی طور پر ہتھیار ڈال دے گا، معاہدے تک ایران پر دباؤ ڈالتے رہیں گے، معاہدے تک ان سے نمٹیں گے۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا، ایران میں سخت گیر رہنما یقیناً جھک رہے ہیں، وہ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ ایران کے پاس اپنے جوہری ذخیرے کو نکالنے کی ٹیکنالوجی نہیں۔ ایران کے مذاکرات کاروں نے اعتراف کیا، انہیں جوہری ذخیرہ نکالنے کے لیے ہماری ضرورت ہے۔ ایران کا جواب مجھے پسند نہیں آیا، مکمل طور پر ناقابل قبول ہے۔ مشرق وسطی میں کشیدگی میں پھر اضافہ، ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی تجاویز پر ایرانی جواب مسترد کر دیا۔ ایران کا بھی سخت رد عمل، کہا ٹرمپ کے رد عمل کی کوئی اہمیت نہیں، ایران میں منصوبے ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں بنائے جاتے۔ ایرانی سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکی تجاویز ٹرمپ کے حد سے زیادہ مطالبوں کے آگے ہتھیار ڈالنے کی مترادف تھیں۔ ایرانی تجاویز میں امریکہ کو جنگی نقصانات کے معاوضے کی ادائیگی اور اپنائے ہرمز پر ایران کی خود مختاری پر زور دیا گیا۔ تہران صرف اپنے حقوق کے تحفظ کا خواہاں ہے، ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا رد عمل۔ تہران نے امریکہ کو فراخ دلانہ اور ذمہ دارانہ تجاویز پیش کی۔ اسماعیل بقائی نے کہا کہ ایران کے خلاف جنگ کا خاتمہ اور آبنائے ہرمز کو کھولنا جائز مطالبات ہیں، ناکہ بندی کو ختم کرنا، بحری قذافی کا خاتمہ اور ایرانی اثاثوں کو بحال کرنا بھی جائز مطالبات ہیں۔ لبنان سمیت خطے میں سیکیورٹی کا قائم کرنا ایران کے مطالبات میں شامل تھا۔ یہ مطالبات خطے کی سیکیورٹی کے لیے ذمہ دارانہ مطالبات ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان باضابطہ ثالث اب بھی پاکستان ہے۔ اسماعیل بقائی نے کہا، قطر سمیت دیگر ممالک بھی فریقین سے رابطے میں ہیں۔ قطر سمیت کئی ممالک کشیدگی کم کرنے کے لیے رابطے کر رہے ہیں۔ ایران کے جواب کے بعد سفارتی کوششیں تیز۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی تازہ ترین صورتحال اور پاکستان کی ثالثی میں ایران اور امریکہ کے جاری سفارتی عمل پر گفتگو۔ 24 گھنٹوں میں یہ دونوں وزراء خارجہ کا دوسرا رابطہ تھا۔ سعودی عرب نے ایک بار پھر مسائل کے حل کے لیے سفارتکاری کی حمایت کا اعادہ کیا۔ اسحاق ڈار کا سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق خطے کی بدلتی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی وزیر خارجہ نے ایران اور امریکہ کے جاری سفارتی رابطوں کے حوالے سے حمایت کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے بحری سلامتی کے تحفظ کی اہمیت پر بھی غور کیا۔ امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات، علاقائی صورتحال اور پاک امریکہ دو طرفہ تعلقات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان رابطوں کے لیے سہولتکار کا کردار ادا کر رہا ہے۔ ایرانی تجویز مسترد کرنے پر عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 3% سے زائد اضافہ ریکارڈ۔ برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $104 فی بیرل اور WTI کی قیمت $99 فی بیرل ہو گئی۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں مندی، 100 انڈیکس میں 1000 سے زائد پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 1,70,056 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ پنوں میں پولیس چوکی پر دہشت گردوں کے حملے میں افغان سرزمین کے استعمال ہونے کے ثبوت ذمہ داروں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ پاکستان کا افغانستان کو دو ٹوک پیغام۔ پاکستان کا افغانستان سے شدید احتجاج۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق افغان ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاجی مراسلہ دیا گیا، جس میں واضح کیا گیا کہ تحقیقات اور تکنیکی شواہد سے ثابت ہوا کہ حملے کا ماسٹر مائنڈ افغانستان میں مقیم ہے۔ دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کا مسلسل استعمال ناقابل قبول ہے اور افغان عبوری حکومت دہشت گردوں کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کرنا بند کرے۔ افغان طالبان فتنہ الخوارج، فتنہ ہندوستان اور داعش کے خلاف ٹھوس اور مؤثر کارروائی کریں۔ اسلام آباد بڑی تباہی سے بچ گیا، انٹیلیجنس ایجنسی کی کارروائی، خودکش بمبار عورت گرفتار خودکش بمبار عورت میڈیا کے سامنے پیش۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے بتایا کہ خودکش بمبار حملے کے مشن پر تھی۔ اسلام آباد میں حملے کا ہدف دیا گیا تھا۔ دہشت گرد عورتوں کو ہنی ٹریپ کے ذریعے بلیک میل کرتے ہیں۔ خودکش حملہ نہ کرنے پر بمبار کے باپ کو قتل کرنے کی دھمکی دی گئی۔ خودکش بمبار نے دہشت گردوں کے نام پولیس کو بتا دیے، کہا شکر ہے خودکش حملے سے بچ گئی۔ قاسم نے ڈرا دھمکا کر BRA کے لیے کام کرنے کو کہا۔
सदर जरदारी से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात, मौक़े हक़ के शुहदा और मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना सलाहियतों को खराज तहसीन। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ उमूर और ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सदर मुमलिकत ने कहा कि मुश्किल जोग्राफियाई और इलाकाई सूरत हाल, मशरिक़ वस्ता में कशीदगी और सप्लाई चेन मुतासर होने के बावजूद अवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। उन्होंने महंगाई के दबाव में कमी, अशियाए ज़रूरत की दस्तयाबी और आम आदमी को रिलीफ देने के लिए मुमकिन इक़दामात की हिदायत की। हुकूमत का महंगाई के मारे अवाम पर एक और पेट्रोल बम गिराने का इशारा। वज़ीर पेट्रोलियम ने खतरे की घंटी बजा दी। कहा कि IMF हदफ के मुताबिक डीजल और पेट्रोल पर लेवी 160 रुपये तक ले जाना है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम के इजलास में वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने पेट्रोल की कीमत में इजाफे की वजह लेवी को करार दिया। बताया कि बजट में IMF से तय हुआ था पेट्रोल पर लेवी 80 रुपये फी लीटर चार्ज करेंगे, लेकिन मशरिक़ वस्ता जंग के बायस हालात बदल गए। IMF किस्त की मंजूरी के लिए लेवी बढ़ाना पड़ी। IMF हदफ के मुताबिक डीजल और पेट्रोल पर लेवी 160 रुपये तक ले जाना है। कौमी असम्बली समेत सिंध और पंजाब असम्बलियों में मौक़े हक़ का 1 बरस मुकम्मल होने पर पाक फ़ौज को खराज तहसीन की करारदादें मंजूर। वफाकी वज़ीर क़ानून की करारदाद में कहा गया कि ऐवान कौमी फ़ख्र के साथ पाक फ़ौज की पेशा वराना सलाहियत को सराहता है। पाक फ़ौज के ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के दौरान मुतवाज़न और फौरी रद्दअमल को सराहता है। पाकिस्तान के J-10C जहाज़ ने भारत के कीमती अस्करी ज़खायर को तबाह किया। सिंध असम्बली में भी मौक़े हक़ से मुताल्लिक़ करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब दिया गया जो बरसों याद रखेगा। पंजाब असम्बली में भी मौक़े हक़ की कामयाबी का साल मुकम्मल होने पर करारदाद मंजूर की गई। करारदाद में लिखा गया कि पंजाब असम्बली का ये ऐवान बुनियाद मरसूस यानी मौक़े हक़ में तारीख़ साज कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज और दीगर दिफाई इदारों को मुबारकबाद पेश करता है। यूरोपीय ममालिक ऐसे इक़दामात से गुरेज करेंगे जो उनके अपने मफादात को नुकसान पहुँचा सकते हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का यूरोपीय ममालिक को इंतबाह। यूरोपीय ममालिक की जानिब से जंगी जहाज़ तैनात करने की इतलात पर इस्माइल बकाई ने कहा कि यूरोपीय ममालिक अमरीका इसराइल के गुरूर पर अपनी पॉलिसीज़ का हिस्सा न बने। ईरान के खिलाफ जारी जंग न सिर्फ गैर अखलाकी बल्कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन के भी खिलाफ है। अपनाए हुर्मुज़ के खलीज फार्स में किसी भी किस्म की मुदाखलत सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना देगी। ईरान के खिलाफ जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। तेहरान के पास मौजूदा अफजोदा यूरेनियम कब्जे में लिया जाएगा। सहयूनी वज़ीर-ए-आज़म का ईरान के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान। कहा कि ईरान की जोहरी तनसीबात को नाकारा बनाना और यूरेनियम वापस लेना ज़रूरी है। दावा किया कि अमरीकी सदर भी इसी मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। इसराइल के साबिक़ इंटेलिजेंस चीफ डैनी सिट्रोनिच ने CNN से बात करते हुए कहा कि इसराइल ईरान और अमरीका में जंगबंदी का ख्वाहान नहीं। इसराइल की कोशिश है कि ईरान से कोई ऐसा समझौता ना हो जिससे ईरान की मौजूदा हुकूमत और इसकी फ़ौजी ताकत बरकरार रहे और इसको माली फ़ायदा हासिल हो। जंगबंदी के बावजूद सहूनी फ़ौज के लिबनान में हमले मज़ीद 51 अफराद शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सहूनी अफवाज ने कलाफिया और तबनीन में तिब्बी मराकज़ को निशाना बनाया। इजरायली हमलों में मज़ीद 51 अफराद शहीद और दर्जनों ज़ख्मी हुए, जिनमें 2 तिब्बी कारकुनान भी शामिल हैं। 2 मार्च से जारी हमलों में शहदा की तादाद 2800 से तजावुज़ कर गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक हिज़्बुल्लाह ने तैयबा में इजरायली फौजी ठिकाने पर हमला किया। लेबनान की मज़ाहिमती तंजीम और सहूनी फोर्सेस की झड़पों में 18 इजरायली फौजी भी मारे गए। हुकूमत और अपोजिशन के राब्ते। हुकूमत की एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई को मुलाकात का पैगाम भिजवा दिया। शहबाज शरीफ ने कायद हिज़्ब इख्तिलाफ को वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस या हाउस में मुलाकात की दावत दी। महमूद अचकज़ई की वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस या हाउस में मुलाकात से मुआज़रत। गैर जानिबदार मुकाम पर मुलाकात की तजवीज़। इब्तिदाई तौर पर राना सनाउल्लाह की रिहाइशगाह पर मुलाकात पर आमादगी ज़ाहिर की गई। सिंध और पंजाब के तालीमी इदारों में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान। पंजाब में छुट्टियों का आगाज़ 22 मई से होगा और 24 अगस्त से स्कूल खुलेंगे।
महकमा तालीम सिंध के मुताबिक स्कूलों में मौसमी गर्मा की तातीलात 1 जून से 31 जुलाई तक होंगी। फैसले का इतलाक तमाम निजी और सरकारी स्कूल्स पर होगा। मस्तों में लखपास के करीब कस्टम के गोदाम में आतिश ज़दगी, आग पर काबू ना पाया जा सका। वेयर हाउस में मौजूद अरबों रुपए मालियत के सामान में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में पकड़ा गया कपड़ा, टायर, सिगरेट, गाड़ियाँ और दीगर सामान शामिल था। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक अब तक मुतादिद गाड़ियाँ और सामान जलकर तबाह हो गया। हुकूमत सिंध मीडिया हाउसेस और सहाफ़ियों के साथ ताउन को मज़ीद मजबूत बनाना चाहती है। मस्बत और जिम्मेदाराना सहाफ़त माशरती तरक्की में कलीदी हैसियत रखती है। वज़ीर इत्तलात सिंध शजीर इनाम मेमन की महकमा इत्तलात के अहम इजलास में गुफ्तगू। महकमे के तहत मुकम्मल होने वाले फिल्मी मनसूबों के मुस्तक़बिल तशहीर और मौसर इस्तेमाल से मुतालिक अहम फैसले। कहते हैं कि फिल्मी मनसूबों का बुनियादी मकसद कौमी बयानी को फ़रोग़ देना, माशरे में मस्बत रुझानात को उजागर करना है। ईरान का व्हाइट हाउस की तर्जुमान को बेटी की पैदाइश में मुबारकबाद का असरअंदेज पैगाम। आर्मीनिया में ईरानी सफारत खाने ने एक्स पर अपने पैगाम में व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लिविट की बेटी की पैदाइश पर लिखा कि तुम्हें मुबारक हो, बच्चे मासूम और प्यारे होते हैं। वो 168 मासूम जो तुम्हारे बॉस ने मीनाब के एक स्कूल में कत्ल किए और तुमने वजह भी तराशी, वो भी बच्चे थे। जब तुम अपनी बेटी को बोसा दो तो उन बच्चों की माओं के दुख से मुताल्लिक भी सोचना। डॉक्टर वॉर्स गज़ा में फ़लस्तीनी तिब्बी अमले पर ज़हनी हमलों से मुतालिक दस्तावेज़ी फिल्म डॉक्टर्स अंडर अटैक के नाम। अवार्ड्स जीतने के बाद फिल्म साजों की बरतानवी नशियाती इदारे BBC पर कड़ी तनकीद। फिल्म को BBC ने गैर जानिबदारी के खदशात के बाइस नशर करने से इनकार कर दिया था। फिल्म को चैनल 4 ने नशर किया। दस्तावेज़ी फिल्म में गज़ा के फ़लस्तीनी डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के चश्मदीद बयानात शामिल हैं। अवार्ड वसूल करते हुए एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ने BBC पर तंज करते हुए कहा, जब आपने हमारी फिल्म ही छोड़ दी तो क्या बाफ्टा स्क्रीनिंग से भी हमें निकाल देंगे। अमरीकी सदर की दौरा चीन की तारीख का ऐलान। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप बुध की शाम बीजिंग पहुंचेंगे। सदर ट्रंप के एजाज में जुमेरात की शाम इशाया होगा। तर्जुमान का कहना है कि अमरीका और चीन मुश्तरका तजारती और सरमायाकारी बोर्ड पर काम करेंगे। चीन अमरीका एरोस्पेस, ज़राअत और तवानाई के शुबों पर भी बातचीत होगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चकवात समेत मुल्क के मुतअद्दिद इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। लाहौर में आंधी और बारिश से मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की बरामदी मुअत्तल। मालाकंड, सवात, नौशहरा, शुमाली वजीरिस्तान समेत KPK के मुतअद्दिद इलाकों में भी बादल बरसे। सवाबी में आसमानी बिजली गिरने के बाइस मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जख्मी। वादी नीलम और मुजफ्फराबाद में भी बारिश। कराची में सूरज के मिजाज गर्म, ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड, हीट इंडेक्स 37 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। ढाका टेस्ट चौथे रोज का खेल। बांग्लादेश की पोजीशन मुस्तहकम। पाक बांग्लादेश का 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच ढाका में जारी। आज चौथा रोज बारिश की वजह से सिर्फ 37 ओवर्स तक महदूद रहा। बांग्लादेश ने आज अपनी दूसरी इनिंग्स का आगाज 7 रन बगैर किसी नुकसान के 34 रन की बढ़तरी से किया। बांग्लादेश ने खेल के खिताम तक 3 विकेटों के नुकसान पर 152 रन बनाकर पाकिस्तान पर 173 रन की बढ़तरी हासिल करने के साथ मैच पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। और ला लीगा टाइटल 29वीं बार स्पेनिश फुटबॉल क्लब बार्सिलोना के नाम। रवायती हरीफ रियल मैड्रिड को 2-0 से शिकस्त। कैंप नाउ में खेले गए अहम एल क्लासिको में फतह के बाद बार्सिलोना ने 3 मैचेस कबल ही लीग टाइटल अपने नाम किया। कैटालोनिया क्लब के फेरन टोरेस और मार्कस रैशफोर्ड ने एक गोल स्कोर किया।